Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. We were discussing parts of speech. Today's topic is adverb. If you haven't watched my previous videos, go watch them first. If you enjoy watching my videos, like and subscribe to my channel. Hit the bell icon so you will get notified whenever I upload a new video. Adverb. Adverb is a word which adds meaning to the verb or which describe how or when or where our action took place. Any action which is performed by a noun or pronoun is called verb, and how it take place and where it take place and when it take place describe the adverb. The word that adds something to the meaning of verb or tell us something about the verb with reference to time, place and manner. When we talk about time, we have to know when the action take place. And when we concerned with place, so we will have to know where the action take place. And for manner, we will get to know how the action take place. Let's have a look on examples. Number 1, adverb of time. Adverb of time tell us about the time of happening of action, like in what time the action of a sentence in a sentence performed by a noun, pronoun or a subject take place. कब हुआ वो action. So we can use the word now. You have to go now. So now, go is the verb and now will be the adverb of time. Soon, I will come soon. So soon will be the adverb of come. Alright, immediately, you should report immediately. So report will be the verb and immediately will be the adverb of time. Let's move. We have more examples. You can make your own sentences by yourself. Now move to the next category of adverb, adverb of place. Adverb of place obviously tell us where the action take place. It tell us about the place where the action in a sentence is happening or happened or will happen. कहाँ होगा और कहाँ होया या कहाँ हो चुका था या कहाँ हो रहा है. For example, here, far, beyond, out, above. Let's take example of out. You should go out for a walk. So go will be the verb and out will be the place. कहाँ जाना चाहिए हमें, जो वर्क एक्शन है हमारा, go है हमारा जो एक्शन, उसको कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, out. So out will be the adverb of place in that sentence. Come here. Come is the verb and what describing is here. तो क्या आ जाएगा, here will be the adverb of place and come will be the verb. Now the last category we have adverb of manner. It tells us about how the action take place. If it like wisely, you should figure this out wisely. So figuring out is the verb of someone and wisely is the adverb of manner, which is telling that figuring out is a wise action. Happily, she lived happily in her house. So or they lived happily in their house. So क्या होगा कि live will be the verb, living will be the verb and happily will be the adverb. Now you are aware and familiar with 3 categories of adverb. Adverb of manner, how the action take place, adverb of place, where the action take place, and adverb of time, when the action take place. And adverb is a word which add meanings to the verb or meanings to an action. Now let's move to the example where we are using the 3 of them in one sentence. Let's have a look on example. Example, he regularly goes there for swimming early in the morning. So in a sentence I have used all of the categories of verb. Number 1, सबसे पहले तो हमने verb देखा. Verb is goes है verb हमारा. How the verb happened, in what manner the verb happened, regularly, on regular basis. So and manner of adverb क्या हो गया हमारे पास, regularly, how the action happened and where the action happened, there, वहाँ पे. So there will be the adverb of place. For swimming early in the morning and time क्या है हमारे पास, early. So adverb of time will be when. After knowing adverb, we have some of the facts of the adverb. Number 1 fact, adverb is also described by an adjective is also described by an adverb. कि हमारा जो adverb है वो not only verb को describe करेगा बल्कि हमारे पास adjective को भी वो describe करेगा. Let's have a look on example. She is happy. So she is a pronoun को जो भी चीज़ define करिए, describe करिए is an adjective. मैंने adjective पे video upload की है. If you haven't watched my videos yet, go and watch them first so you will get the
synchronized order of parts of speech. Now if we add the adverb before the adjective which is very. Very is a manner adjective कि हमारा जो काम है वो कैसे हुआ, how the action happened. So she is very happy. Happy will remain the adjective, remain adjective, but एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब भी यूज़ किया जाएगा कि जो भी एडजेक्टिव है हैप्पी जो है वो कैसा है. हाउ इज़ द एडजेक्टिव, हाउ मतलब कैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा है, सो वेरी हमने यूज़ किया. ऑलराइट, सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट फॉर एडवर्ब. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फैक्ट वी हैव. सेकेंड फैक्ट वी हैव इज एडवर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अदर एडवर्ब. इट मीन्स एडवर्ब खुद तो डिफाइन करेगा वर्ब को, लेकिन उस एडवर्ब को जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है उसको भी कोई और डिफाइन कर सकता है. ठीक है, टू एडवर्ब्स कैन डिस्क्राइब और डिफाइन ईच अदर. लाइक एग्जाम्पल हम देते हैं, शी डांसेज ब्यूटिफुली. सो शी इज़ अ प्रोनाउन और सब्जेक्ट ओवर हेयर एंड उसका वर्ब क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली डांसेज ब्यूटिफुली विल बी द एडवर्ब. ये एक कॉमन सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसमें बीच में एक और एडवर्ब डाल देंगे जो कि ब्यूटीफुली को डिस्क्राइब करेगा तो ये भी एक फैक्ट होगा कि एडवर्ब को भी एक कोई एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है. लाइक रियली, ये एक और एडवर्ब है कि हाउ द एडवर्ब इज़ हैपनिंग, कैसे हो रहा है, ब्यूटीफुली तो हो रहा है. एक्शन को डिस्क्राइब किया एडवर्ब ने ब्यूटीफुली और एडवर्ब को डिस्क्राइब किया एक और एडवर्ब में कि वो एडवर्ब कैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, रियली. ऑलराइट, दीज आर फ्यू फैक्ट्स you should know about adverb. People may find difficult differentiation of adverb and adjective. Let me get it clear to you. In many of the places, the word which we use for adjective and the word which we use for adverb are the same. Like I have given you 4 example. In 4 of them, I use the same word for as an adjective and as an adverb too. So हमें कैसे पता चलेगा that if either the word is using as an adjective or as an adverb. For example, सबसे पहले मेजर डिफरेंस तो ये है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, कोई काम को डिस्क्राइब नहीं करेगा. एडवर्ब का काम ये है कि वो वर्ब को डिफाइन करेगा, एक्शन को डिफाइन करेगा, किसी भी नाउन को डिफाइन नहीं करेगा. ऑलराइट, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास फास्ट है, दोनों में फास्ट है. हमें कैसे पता चला एडजेक्टिव है, कैसे पता चला एडवर्ब है. लेट्स हैव अ लुक एन एग्जाम्पल. ही कॉट द फास्ट ट्रेन. अब यहाँ पे कॉट पे डिफाइन नहीं हो रहा कि उसने पकड़ी कैसे, नहीं पता चल रहा, नहीं इस पे फोकस है. फोकस किस पे है, ट्रेन पे, जो कि फास्ट है. सो एनीथिंग विच इज़ फोकस्ड ऑन द नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड हम जब इसको एज एन एडवर्ब देखें, ही रैन फास्ट टू कॉट ट्रेन. अब ट्रेन पे फोकस नहीं हो रहा, ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, बल्कि उसकी रनिंग पे फोकस हो रहा है, उसके एक्शन पे फोकस हो रहा है. सो एनीथिंग जो कि हमें बताए कि हमारा काम कैसा हो रहा है, काम पे फोकस हो, वो कहलाता है एडवर्ब. दोनों में फास्ट यूज़ हो रहा है, बट इन दिस सेंटेंस द फोकस इज़ ऑन ट्रेन, बट इन दिस सेंटेंस द फोकस इज़ ऑन एक्शन. Let's move to the next example we have. He is a hard worker. So किस पे डिस्क्राइब किस पे हो रहा है, ही पे हो रहा है कि कैसा काम तो वो करता है, लेकिन कैसा काम करता है, मेहनत का काम करता है. सो ये क्या है हमारे पास, इसका प्रोनाउन है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसका एडजेक्टिव. आफ्टर दैट ऑन द अदर हैंड हार्ड, यहाँ पे भी हार्ड एज अ हार्ड यूज पे फोकस है कि वर्किंग कैसी हो रही है, हार्ड वर्किंग हो रही है. सो द वर्ड विच डिस्क्राइब देन a noun, pronoun और a subject is called adjective, और जो भी एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वो एडवर्ब है. लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल. द बस इज़ ऑलवेज लेट. सो हेयर इस पे तो एक्शन है ही नहीं कहीं, तो सिंपल हमें पता चल जाएगा कि बस को, कॉमन नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा लेट डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है. इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें देयर इज़ नो वर्ब इन दिस सेंटेंस, बट इन दिस सेंटेंस वी हैव वर्ब अराइव्ड. सो द अराइवल ऑफ मी, आई जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है, अराइवल ऑफ मी एट होम इज़ लेट. सो अराइवल को डिस्क्राइब कर रहा है लेट, कैसा है काम, लेट है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा. नंबर 4, डेली. माई डेली न्यूज़पेपर इज़ 50 पैसा. सो डेली न्यूज़पेपर पे फोकस हो रहा है कि डेली जो न्यूज़पेपर आता है वो 50 पैसास का. इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है. जबकि यहाँ पे क्या है, स्विम डेली, स्विम पे फोकस है कि स्विम कैसे किया उसने, डेली किया.
तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं अब कि हमारे पास जो एडजेक्टिव हैं हम उनको कैसे एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। बाय एडिशन, बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव वी कैन ऑल्टर इट टू द एडवर्ब। हम जब भी किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हम उसके आगे ly लगा देंगे। लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी डांस ब्यूटिफुली। सो हम जब ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, जब ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे तो एज एन एडवर्ब यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आई हैव गिवन यू मोर एग्जाम्पल लाइक बिजी, बिजीली, हैप्पी, हैप्पीली, टाइडी, टाइडली, ईजी, ईजीली, पेशेंट, पेशेंटली। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो समझ आया होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा और जितने भी फैक्ट्स हैं, फन फैक्ट्स हैं हमारे पास एडवर्ब के, वो समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई इशू है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।